हाँ जी बेटा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟੂ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ f and g are said to be equal if and only if firstly ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ fx is equal to gx for every x belongs to df ਮੀਨਸ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਹਰੇਕ x ਮਤਲਬ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ fx is equal to gx ਹੈਗਾ then we say the two functions are equal। clear? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ x ਦੀ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ x ਦੀ ਸਪੋਜ਼ 1 ਜਾਂ 2 ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ that are equal functions। okay, next is the constant function मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ function f(x to y) is called the constant function if fx is equal to y for every x belongs to capital X and for fixed y belongs to capital Y। means ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 4 this is the figure number 4। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 2 4 7, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। x ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ fx ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ that is called the constant function। next is the identity mapping ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ x to x ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ that is called the identity mapping। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इनवर्स मैपिंग इनवर्स फंक्शन केड़ा हुंदा अपने कोले कि जे f अपने कोले कोई फंक्शन है x to y if f is the function x to y it is also 1 and on to। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ that must be 1 and on to, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 1 ਤੇ on to ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਤੇ on to ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ 1 ਤੇ on to ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ f ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ y ਆਪਣਾ ਡੋਮੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ x ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਂਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,
ठीक है। पहला आप x टू y जाते थे, जो इनवर्स लैने, देखो इनवर्स का मतलब कि उल्टा कर देना, मीनस फिर आप y टू x जाने हैं, ठीक है। y टू x गए तो y हुण अपने लिए जो इनवर्स दे विच अपने को y की बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, x अपना की बन जाएगा, रेंज को डोमेन बन जाएगा, ठीक है, को डोमेन सेट बन जाएगा। विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y द यूनीक एलीमेंट x। डेफिनेशन फिर वही जी अपनी फंक्शन वाली सी, हुण वो एफ इनवर्स से लग जाएगी कि आपने की करना, y के हरेक एलीमेंट नू एसोशिएट करना विद द यूनीक एलीमेंट ऑफ x, कि मीनस डोमेन, हुण डोमेन की है y है, कि डोमेन के हरेक एलीमेंट नू x के एलीमेंट के नाल यूनीक एलीमेंट के नाल एसोशिएट करना, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज कॉल्ड द इनवर्स मैपिंग ऑफ एफ। क्लीयर। हुण ये एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कर लो जिमें कि x इक्वल टू 1 2 3 तो y इक्वल टू ABC, अपने दो सैट्स लै ले, तो फंक्शन की अपने को एफ की वैल्यू तो अपने को हैगी 1A 2B 3C। हुण ये की है अपन क्लीयरली पता चल रहा, देखो 1 1 तो ऑन टू दोनों, क्योंकि यूनीक एलीमेंट्स के नाल जिहड़ा हैगा ये बन रहा, ये 1 1 भी बन रहा तो ऑन टू भी। देयरफॉर पहला तो मीनस जो भी तुहानूं इनवर्स कड्ढण वास्ते कहा जाएगा ना, ये देखो कि यदा इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो किमें पता चलेगा, जो वो 1 1 तो ऑन टू है, तो इट मीनस यदा इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ y टू x। तो इनवर्स की होएगा, इनू उल्टा कर दो, A1 B2 C3। क्लीयर। नैक्सट जो है हुण ये चीज़ तुसी सीखनी हैगी, मेन जिहड़ा हैगा टॉपिक तुहाडा यही चीज़ आएगा कि सम्स दे विच एग्जाम्पल च तुहानूं यही चीज़ सिखाऊंगी, हाउ टू चैक द 1 1 एंड ऑन टू, कि सम्स दे विच तुसी किवें चैक करोगे कि कोई भी फंक्शन जिहड़ा है वो 1 1 भी है तो ऑन टू भी है। 1 1 तो ऑन टू की आपां किस तरह ये जी चीज़ है फाइंड आउट करांगे, इनू आपां एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लैट आपां जिमें कि हाँ फंक्शन गिवन है n टू n, ठीक है, डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, प्रूव दैट एफ इज़ 1 1। देखो जो भी तुसी फंक्शन नू 1 1 चैक करना है, आपां कित्थों शुरू करांगे बेटा, ये मैथड ही है, बस इनू एज इट इज़ तुसी जिहड़ा हैगा फॉलो करना है कि फंक्शन नू तुसी 1 1 चैक किवें करना है। आपां की करांगे, डोमेन दे कोई भी दो एलीमेंट्स, जिहड़ा भी तुहाडा डोमेन गिवन होएगा, तुसी की करने आ उहदे एनी 2 एलीमेंट्स सपोज कर लोगे x1 ते x2, ठीक है, x1 ते x2 आपने कोई भी डोमेन के दो एलीमेंट्स जिहड़े हैगे सपोज कर लवांगे, सच दैट आपां कंडीशन लैके चलांगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है, कि मीनस उन्होंने आपने की किया, डोमेन के अजिहे दो एलीमेंट्स लत्ते कि उन्होंने फंक्शनस की वैल्यू की आ गई, इक्वल आ गई, तो आप शो कर देवांगे कि वो दोनों एलीमेंट्स भी इक्वल है। क्लीयर। क्योंकि आपने 1 1 की डेफिनेशन च बेटा किया सीगा, 1 1 की डेफिनेशन च आपने यही चीज़ की सी कि कोई भी दो फंक्शन जे इक्वल है तो मीनस वो एलीमेंट्स भी इक्वल है। डिफरेंट एलीमेंट्स वास्ते फंक्शनस की वैल्यू भी डिफरेंट होएगी, जे फंक्शनस की वैल्यू सेम है तो इट मीनस उन्हां दी एक्स की वैल्यूज़ भी सेम है। तो आप जो 1 1 शो करना है ना, तो आप यही चीज़ शो करांगे। 1 1 शो करने वास्ते आपने आही चीज़ शो करनी है कि आप फंक्शनस की वैल्यू इक्वल लैके चल पाएंगे, तो एंड ते आप शो कर दिया करांगे कि वह एलीमेंट्स भी इक्वल है। सो हुण आपने एनी 2 एलीमेंट्स डोमेन चो लते x1 ते x2, क्लीयर, सच दैट कि उन्होंने फंक्शनस की वैल्यू की है इक्वल है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। हुण आह x1 ते x2 दियां वैल्यूज़ ये पुट कर दो, है ना, x1 है, x की जगह तो x1 पुट कर दो, इत्थे x2 है तो x की जगह तो x2 पुट कर दिता। इत्थों अपने को आ गया 2x1 + 5, राइट हैंड साइड ते 2x2 + 5 x1। उस तो बाद तुसीं इन्हूं की करो, राइट हैंड साइड ते लै जाओ, इधर है कि माइनस का हो जाएगा, माइनस दे 2x2 माइनस दे 5, 5 नाल 5 कैंसल हो जाएगा, इन्होंने दोनों जो 2 कॉमन आ जाएगा, x1 - x2, 2 इधर है कि 0 ही बन जाएगा। उस तो बाद x1 - x2 इक्वल टू 0, x2 राइट हैंड साइड से लिया गा, तो मीनस x1 इज इक्वल टू x2। यही चीज़ आपने शो करनी सी, देयरफॉर f इज़ 1 1। क्लीयर बेटा। इस तरह आपने की चीज़ों फंक्शनस की कर सकते हैं, आप शो कर सकते हैं कि वो हो गया 1 1।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ कि अगला फंक्शन है सैट ऑफ इंटीजर्स ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर शो दैट दिस इज़ नॉट 1 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ 1 1। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ 1 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਨੋਟ 1 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟੀਜਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ 2 ਤੇ -2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤੇ -2 ਅਜਿਹੇ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एक्स की वैल्यू 2 ਤੇ देखो 2 ਤੇ -2 दोनों डिफरेंट इंटीजर्स है ना, दोनों ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ डिफरेंट एक पॉजिटिव एक नैगेटिव इंटीजर है। पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह ਤੇ 2 ਦੀ वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 पुट की, आंसर इज़ 4। -2 पुट किया, आंसर इज़ 4। फंक्शन की वैल्यू अपने को सेम आ रही है। 2 डिफरेंट इंटीजर्स वास्ते वी हैव द सेम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो केड़ा फंक्शन बन गया, मैनी वन फंक्शन बन गया ना बेटा। तुहानू दस्सिया सी ना कि दो डिफरेंट इंटीजर्स वास्ते अपने कोले जे सेम फंक्शन की वैल्यू आउंदी हैगी दैट इज़ द मैनी वन फंक्शन, दैट इज़ नॉट द 1 1 फंक्शन। सो इट इज़ नॉट द 1 1 फंक्शन। क्लीयर, यही चीज़ है कि तुसी किमें 1 1 तो 1 1 जिहड़ा हैगा जां नोट 1 1 शो करना है, किस तरह करना। नैक्सट जिहड़ा हैगा स्टैप इहदे विच तुसी हुण शो करना है ऑन टू, कि हाउ टू चैक ऑन टू किमें चैक करोगे। ऑन टू दे विच भी पर्टिकुलर जिहा एक मैथड है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुहानू दसदी है कि किस तरह तुसी शो करना है। जिमें कि आ मैथड लिखा है, तुसी इहनू एक बारी रीड करना बेटा कर सकते होगे। मैं तुहानू एग्जाम्पल के थ्रू ही समझावांगी कि जिमें कि तुहानू आह एक फंक्शन गिवन है एन टू एन। ठीक है, एन का मतलब नैचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 इज़ ऑन टू और नॉट। चैक करो कि ऑन टू है या नहीं हैगा। वी टेक वन एलीमेंट फ्रॉम, ठीक है। तो हुण आपां ने की कीता गा, जदों भी ऑन टू चैक करना, देखो ऑन टू की जिहड़ी कंडीशन हुंदी है यह की हुंदी है कोडोमेन दे नाल हुंदी हैगी। ये तुहानूं दस्सिया ना, जिहड़ी ऑन टू हुंदा है ये अपना किहदे नाल चलदा है, ये कोडोमेन नाल चलदा है। डेफिनेशन की कहंदी है ऑन टू दी कि कोडोमेन दे हरेक एलीमेंट दी प्री इमेज डोमेन दे विच होनी चाहिदी है ना। कोडोमेन की कहंदा ऑन टू की कहंदा है कि कोडोमेन दे हरेक एलीमेंट दी प्री इमेज जिहड़ी है डोमेन च होनी चाहिए है। एक कोडोमेन दे नाल चलदा है। तो इस करके आपां की करांगे, आपां हुण कोडोमेन चो एक एलीमेंट लवांगे। वी टेक वन एलीमेंट फ्रॉम कोडोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन दा आपां ने एनी एलीमेंट जिहड़ा हैगा y बिलोंग्स टू n चूज कर लिया। इफ पॉसीबल आपां ने सपोज कर लिया, एक तरह का पॉसीबल लिख लो, चाहे सपोज कर लिया आपां ने y इज इक्वल टू एफ एक्स, इनू लिख लो। आपां इनू सपोज कर लांगे, ये अपनी तरफ तो लैके चलेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, वेयर एफ एक्स की वैल्यू की अपने को 2x + 5 वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये तुसी की करना है बेटा, y इज इक्वल टू 2x + 5। हुण तुसी इनू की करना है, इस तरह सॉल्व करना है x वास्ते। इनू क्या x वास्ते सॉल्व करूँगी, x वास्ते किवें सॉल्व करूँगी कि जिमें कि 5 है, इनू लैफ्ट हैंड साइड ते लिआंदा, -5 बन जाएगा। ठीक है, तो उस तो बाद जो 2 है ये वटे च चला जाएगा। इनू देखो हुण इत्थे अपने को x की वैल्यू आ गई ना कि x इज इक्वल टू y - 5/2। x वास्ते सॉल्व करना मतलब की है, तुसी x की वैल्यू कढ़नी है इन टर्म्स ऑफ y। क्लीयर, वी हैव टू चैक वैदर फॉर y बिलोंग्स टू n। हुण तुसी ये चैक करना है कि जिहड़ा हैगा ये नैचुरल नंबर बन रहा या नहीं बन रहा। वी कैन फाइंड और नॉट एक्स बिलोंग्स टू एन कोडोमेन च, क्योंकि यही की हुण जी आपां ने एक्स की वैल्यू कढ़ी हैगी, एक्स कि वाई दी देखो वाई आपां नूं पता नैचुरल नंबर है ना, क्योंकि आप ये लैके चले हैं, आपां लैके चले सी ना कि वाई इज़ द नैचुरल नंबर। हुण आपां ने एक्स की जी वैल्यू कढ़ी है इन टर्म्स ऑफ वाई कढ़ी है, आपां कोई ना कोई जी हैगी वैल्यू इत्थों लैके चलांगे
y ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿ x ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ x ਇਜ਼ ਦਾ ਡੋਮੇਨ है ना, x इज़ फ्रॉम द सैट ऑफ डोमेन एंड डोमेन इज़ आल्सो द नैचुरल नंबर है ना। डोमेन की है वो भी नैचुरल नंबर है। तो जो आप y की वैल्यू इत्थे पुट करिए तो अपने को यही भी नैचुरल नंबर होना चाहिए है। क्लीयर। तो आप जो हुण इत्थे आप देखो अपने को अजिही कंडीशन है कि जो आप y इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं ना, तुसीं होर भी कोई 6 की जगह तो कोई होर भी एग्जाम्पल ले सकते होगे। इन्होंने 6 लिखा है, तुसीं कोई भी पुट करके देख सकते होगे कि जो आप y की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो इन्हू कैलकुलेट करके देखो 6 माइनस 5 1 1/2 1/2 इज़ नॉट एन नैचुरल नंबर। ये नैचुरल नंबर देखो, नैचुरल नंबर तुहानूं पता डिवाइजर्स नहीं होंगे है, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। सो y इक्वल टू 6 y इक्वल टू 6 का नैचुरल नंबर है, ठीक है। तो यह तो जोड़ा है को डोमेन के सैट में जा रहा है, y इक्वल टू 6 इज़ द नैचुरल नंबर, दिस बिलोंग्स टू द को डोमेन सैट। बट यदी जी प्री इमेज है देखो आ अपने को की है y के एलीमेंट्स है, आ अपने को की है x के एलीमेंट्स है। हुण 6 तो इस सैट में जा रहा है पर यदी जी वैल्यू 1/2 आ रही हैगी वो इस सैट में जा ही नहीं रही, प्री इमेज ये है ही नहीं इस सैट के। आपां ने की कहा सीगा कि ऑन टू होने वास्ते y के सारे एलीमेंट्स की प्री इमेज जी वो x के होनी बहुत जरूरी है, फिर ही ऑन टू होएगा। यानी कि ये आपां ने एक एलीमेंट तो अजिहा दस ही दिता गया जिहदी प्री इमेज नहीं हैगी, तो तुहानूं दस्सिया सी जे अपने कोल एक भी अजिहा एलीमेंट आ गया जिहदे वास्ते कंडीशन नहीं सैटिस्फाई करती, तो इट मीनस दैट फंक्शन दैट रिजल्ट डज नॉट होल्ड, तो वो रिजल्ट नहीं होल्ड करता, मीनस दिस इज़ नॉट द ऑन टू फंक्शन। क्लीयर बेटा, समझ आ गया। हुण तुसीं मैथड समझना है कि ऑन टू तुसीं किवें प्रूव करना है जां नहीं हुंदा। सिंपल जी चीज़ है, तुसीं की करना है सब तो पहला को डोमेन का एक एलीमेंट y लिया करोगे, उन्होंने इक्वल टू f(x) रखोगे, f(x) तुहानूं गिवन होएगा। क्लीयर। वो वैल्यू तुसी पुट करके x की वैल्यू कढ़ लिया करोगे, ठीक है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कढ़ लिया करोगे। क्लीयर। उस तो बाद तुसी की करना y वास्ते चेक करना है कि y दी सारिया वैल्यूज़ वास्ते जे नहीं वो अपने को ऑन टू होएगा तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अजिही होएगी जिहदे वास्ते वो ऑन टू नहीं बनेगा। क्लीयर बेटा। बाकी ज़्यादा होर अगे आपां एग्जाम्पल्स करांगे उस तो आपां नूं क्लीयर होएगी। जिवें कि आपां एक एग्जाम्पल होर कर लैने हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हैगी। फर्स्ट एग्जाम्पल दे विच की हैगा आपां नूं फंक्शन गिवन है f इज़ डिफाइंड ऑन द सैट ऑफ इंटीजर्स। आपां नूं फंक्शन गिवन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो सब तो पहली एग्जाम्पल च आपां नूं की है डोमेन ते रेंज कड्ढण बारे पूछा गया है। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। पहला तो क्या डोमेन ते रेंज कढ़ना आना चाहिए है कि डोमेन ते रेंज किसी भी फंक्शन का किमें कढ़िया जाता है। देखो इत्थे हुण तुसीं ध्यान नाल समझण की कोशिश करनी है कि फंक्शन च की कहा गया है कि जदों एक्स की वैल्यू देखो डोमेन का जिहड़ा संबंध हुंदा है वो हमेशा किहदे नाल हुंदा है, अपना डोमेन का जिहड़ा संबंध हुंदा वो एक्स नाल हुंदा है। देखो है ना, ये तुहानूं मैं दस्सिया सीगा सैट ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ एक्स इज़ द डोमेन। तो डोमेन आपां कित्थों कड्डांगे आ जिथे एक्स लिखिया होया है। तो हुण तुसीं देखो एक्स कित्थे कित्थे डिफाइन कर 1 2 है ना, लैस दैन 4 मीनस 3 भी है, 2 ते 4 दे विच तो 3 भी ये आ गया, 4 ते 6 दे विच तो 4 तो है ही है, 5 6 लैस दैन 6 तक जिहड़ा है। लैस दैन 6 याद रखना बेटा, लैस दैन 6 है ये तो मीनस 6 नहीं ये आ रहा है, यानी कि 5 तक है। यानी कि जी एक्स की वैल्यू है वो देखो इत्थे एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है तो मीनस 1 इनकलूड है, बट लैस दैन 6 है तो 6 ये इनकलूड है। यानी कि एक्स का जो डोमेन है वो एक्स दियां वैल्यूज़ तो आएगा। तो डोमेन ऑफ एक्स अपने को किस तरह बनेगा, लिखन का तरीका DF नाल आपां इहनूं डोनेट करते हैं एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आई, इंटीजर्स का यह सैट है सच दैट f(x) बिलोंग्स टू आई। क्लीयर। तो किहड़ियां वैल्यूज़ आ गई अपने को इंटीजर्स दियां 1 2 3 4 ते 5, क्योंकि लैस दैन 6 है इस करके आप 6 नहीं लेना है। क्लीयर बेटा। ये हैगा अपने को डोमेन का सैट।
उस तो बाद सैकेंड पार्ट च कहते रेंज ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करो। रेंज किमें पता करना, देखो डोमेन आपां ने एक्स दी वैल्यूज़ कढ लियां, रेंज कढण दा तरीका की है, एफ एक्स की वैल्यू कढनी है। तुसीं एक्स दी वैल्यूज़ पुट करी जाओ, एफ एक्स दी वैल्यूज़ तुहाडे कोल आए। एक्स की वैल्यू पुट किमें करनी है, ध्यान च रखना है। देखो पहली एक्स की वैल्यू की है 1 है तुहाडे कोले, एक्स की वैल्यू तुसीं की करो हुण 1 कित्थे पुट करोगे, देखो एक्स की वैल्यू इत्थे ध्यान नाल देखनी है तुसीं, एक्स इक्वल टू 1 तो तुसीं फंक्शन की वैल्यू आह लैनी हैगी एफ एक्स की वैल्यू, इत्थे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 + 1 आ टेबल बनाया होया है, आंसर की आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, फिर एक्स की वैल्यू 2, हुण देखो यह की है, आह जो फंक्शन इनकी वैल्यू ना वो लैस दैन 2 वास्ते है, इक्वल टू 2 वास्ते, जो एक्स इक्वल टू 2 होएगा उदों फंक्शन की वैल्यू आपां ने आ लैनी हैगी। क्लीयर, तो एफ एक्स इक्वल टू आह लओगे तुसीं, इत्थे 2 की एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 × 2 4, 4 - 1 3, तो यानी कि जो एक्स की वैल्यू 2 है उदों एफ एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके, जो एक्स की वैल्यू 3, हुण जो एक्स की वैल्यू 3 लैनी है तो एक्स इक्वल टू 3 कित्थे लाई करदा, आ वाले इंटरवल है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू बिटवीन 2 एंड 4 तो छोटी, यानी कि इस इंटरवल इत्थे तुसीं फंक्शन इस फंक्शन की वैल्यू 3 पुट करनी है। 3 पुट की, 3 × 2 6 - 1 5, वैल्यू की आ गई 5 आ गई। उस तो बाद 4 पुट करने, देखो इत्थे लैस दैन 4 है, यानी कि आ फंक्शन नहीं लेना हैगा हुण इक्वल टू वाला लओगे, एक्स इक्वल टू 4 जिथे है वो की एफ एक्स की वैल्यू आ लेनी है, इत्थे तुसीं एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 × 3 12, 12 - 10 2 आ गया अपने कोले। क्लीयर, इस तरह बेटा तुसीं जिहड़ा हैगा सॉल्व करना है यही चीज़। उस तो बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ F4 की वैल्यू आपां हुणे ही कड्ढी हैगी, इनू सॉल्व करके इन्होंने इत्थे दोबारा दिखाता 2 आ जाएगी अपने कोले। स्टेट वैदर एफ इज़ 1 1 और मैनी 1 फंक्शन, हुण ये कहते सानू दसो कि 1 1 फंक्शन है कि मैनी 1 फंक्शन है। हुण देखो अपने कोले की है इत्थे एफ एक्स, तुसीं देखो अपने कोले 2 अजिहियां वैल्यूज़ है जिन्हां दे फंक्शनस दे विच सेम वैल्यू आ रही है, देखो 2 ते 2, 5 ते 5 है ना, यानी कि एक्स दियां डिफरेंट वैल्यूज़ वास्ते एफ एक्स सेम पे है ना, तो इट मीनस दिस इज़ द मैनी 1 फंक्शन। क्लीयर, इस तरह तुसीं ये पहला बेटा पढ़ लो, कुछ एग्जाम्पल्स अपने आप रीड करने की कोशिश करियो, बाकी मैं तुहानूं नैक्सट लैक्चर च करावांगी। थैंक यू बेटा।